Hello everyone. Today in admission of a new partner, accounting for partnership firm, treatment of goodwill in case of admission of a new partner, part 2, I am going to discuss the next method of treatment of goodwill at the time of admission of a new partner. Dear student, in the last video I have discussed first 3 conditions, cases of treatment of goodwill. In this video I will discuss the next cases of treatment of goodwill. Let us see. The next 4th case is goodwill premium for goodwill is brought in kind by new partner. When goodwill is brought in kind means in form of assets. When new partner brings goodwill in form of assets, then what treatment is made in the books of accounts of the partnership firm? In this case, new partner bring his share of goodwill in form of assets. In this situation, the assets brought in are debited individually with their agreed value, and premium for goodwill account is credited with the share of goodwill. Thereafter, premium for goodwill is transferred to sacrificing partner capital account or current account in their sacrificing ratio. Dear student, जब एक नया पार्टनर गुडविल का पेमेंट इन काइंड करता है, मीन्स इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, नॉट इन कैश, at that time whatever assets he brings, more than one assets he may bring, in that condition all the assets are individually debited in the books of firm, and whatever agreed value of goodwill is credited here. Like this entry, when goodwill premium brought in kind, assets account debit to premium for goodwill, for the share of goodwill, whatever amount of goodwill that is credited here, and the new partner's capital account. If he also bring capital along with the premium for goodwill, then two partners capital account, new partners capital account, this entry will be passed combined with premium for goodwill and capital. यहाँ पर आप देखें कि सभी एसेट जैसे फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, ये सभी एसेट्स लेके आता है, तो 1 बाय 1 सभी एसेट्स को डेबिट करेंगे. जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल का वैल्यू होगा उससे क्रेडिट किया जाएगा, और इसके बाद न्यू पार्टनर की जो कैपिटल होगी उससे भी क्रेडिट किया जाएगा. तो इस तरीके से पहली एंट्री पास करेंगे. इसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आया, इसको जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे जो सेक्रीफाई करेंगे अपनी प्रॉफिट का सम पार्ट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, वो सभी इसको बांट लेंगे आपस में. तो फिर नेक्स्ट एंट्री जो डिवीज़न करने की होगी, शेयरिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बिटवीन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो फिर यहाँ पर हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. कैपिटल और करंट अकाउंट के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन किया जाएगा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड से मेंटेन किया जाएगा तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट किया जाएगा. और ये जो डिवीज़न होगा ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया जाएगा. तो ये एंट्री हमारी 4th केस में किया जाएगा. अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं. लेट अस सी हियर, XY are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 1st April 2020, they admit Z as a new partner for 3/13th share in the profits. New profits ratio will be 5:5:3. Z contributed the following assets to his capital and his share of goodwill. जेड जो लेकर के आता है, इसमें स्टॉक 80,000, डेटर्स 1,20,000, लैंड 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000. ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 10,40,000. ये टोटल फर्म की गुडविल है. इसमें जो जेड को अपना शेयर ले आना पड़ेगा, तो 10,40,000 इंटू जेड का शेयर यहाँ पे आता है 3/13. इससे डिवाइड कर देंगे तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा
80,000 इंटू 3, तो 2,40,000 यहाँ पर एज ए गुडविल लेकर के जो है जेड आएगा। तो एंट्री यहाँ पर जो पहले एंट्री करेंगे, जितनी भी एसेट्स लेके आया 1 बाय 1 सभी एसेट्स को यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, सभी का अमाउंट डेबिट कॉलम में 80,000, 120, 2 लाख, 1,20,000। और इसमें जो गुडविल का अमाउंट आपको बताया 2,40,000, और ये 2,40,000 कैसे आया, 10,40,000 इंटू 3/13। इस तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2,40,000 इसका अमाउंट आएगा, जो कि प्रीमियम रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वह कैपिटल में एडजस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहली एंट्री किया जब वो काइंड में पेमेंट करता है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। इसके बाद इस गुडविल का डिवीज़न जो है ये अमॉन्ग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000, और यहाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है ये एक्स और वाई हैं, तो 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल, और ये सेक्रीफाई कर रहे हैं यहाँ पर 14:1 में। और ये 14:1 यहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का जो आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके फाइंड करेंगे आप। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा 14:1, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसका डिवीज़न करेंगे। जो गुडविल 2,40,000 है तो इसमें x को मिलेगा 2,24,000 और y को मिलेगा 16,000। इस तरीके से टोटल 2,40,000 का डिवीज़न एमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर किया जाएगा। आई होप आपको फोर्थ केस व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, ये केस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं केस 5, जिसमें गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट इन फुल आर पार्ट बाय द न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर अपने हिस्से की जो गुडविल है उसको या तो पूरा या तो कुछ हिस्सा नहीं ले आ पाता है कैश में। तो इन दोनों कंडीशन को यहाँ पर आपको समझना है। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड विद द अमाउंट ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। आपको यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को ध्यान रखना है कि जितना अमाउंट गुडविल के लिए कैश में मिलेगा उसी के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन किया जाएगा। बाकी जो अमाउंट नॉन कैश गुडविल होगी, मीन्स जो पार्ट ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर अपने साथ नहीं लेके आता है, उस गुडविल को लिए यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं ओपन किया जाएगा, बल्कि वह न्यू पार्टनर की कैपिटल या करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इज़ डेबिटेड बाय द अमाउंट नॉट ब्रॉट बाय हिम फॉर गुडविल। तो जितना अमाउंट नया पार्टनर गुडविल के लिए नहीं ले आएगा उसके लिए उसकी कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो पहले आप एंट्री यहाँ पे समझें। फॉर द पार्ट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन कैश, जितना लेके कैश में आएगा वो पिछले कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही होगा जो पिछले केसेस में हमने डिस्कस किया। कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये गुडविल का पार्ट जितना कैश में लेके आएगा। इसके बाद कैपिटल भी साथ में लेके आएगा, कंबाइंड एंट्री कर देंगे यहाँ पे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों कैपिटल और प्रीमियम का अमाउंट और टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, जब इसका शेयर करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में, तो फॉर शेयरिंग प्रीमियम फॉर गुडविल बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे और यहाँ जो अमाउंट होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट के सामने ये वाला कैश पार्ट होगा, जितना वो कैश में लेके आएगा, और जितना नॉन कैश पार्ट होगा मीन्स जो कैश में गुडविल का शेयर नहीं लेके आ पाएगा उसके लिए न्यू पार्टनर की कैपिटल और करेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इसके बाद ये टोटल गुडविल हो जाएंगी। फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और इस तरीके से गुडविल का डिवीज़न इस केस में किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक समझते हैं। आप यहाँ पर देखें, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2020। दे एडमिट Z as a new partner for 1/4 share in the profit which he takes 1/6 from X and 1/12 from Y। तो यही X और Y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 1/6 अपने हिस्से से दिया और 1/12 दिया।
गुडविल अपीयर्स इन द बुक, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है 20,000, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। जेड ब्रिंग्स रुपीज़ 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ रुपीज़ 30,000। तो यहाँ देखें आप, जो जेड के टोटल गुडविल है जो उसे ले आना है 30,000, लेकिन वह पेमेंट कर रहा है यहाँ पर 18,000 सिर्फ कैश में। इसका मतलब 12,000 की गुडविल वो नॉन कैश है। ये जो नॉन कैश है इसके लिए इसकी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट शॉर्टफॉल अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू जेड्स करेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि जो अमाउंट उसने कैश में नहीं ले आया उसके लिए जेड की करंट अकाउंट को ओपन करना है, तो करंट अकाउंट में एंट्री यहाँ पर हम करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो आप कैपिटल अकाउंट से भी इसको नॉन कैश जो गुडविल होगी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेट अस सी द जर्नल एंट्री। जब यहाँ पर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम 20,000 की जो एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स में अपीयर है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, इसको ओल्ड रेशियो में पहले राइट ऑफ कर देंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये 3:2 की रेशियो में 12,000 8,000, और ये राइट ऑफ कर दिया एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन 3:2 रेशियो। इसके बाद नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया कैश में उसके लिए एंट्री करेंगे। तो उसने सिर्फ 18,000 पेमेंट किया कैश गुडविल, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 की एंट्री किया। इसके बाद जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो कैश गुडविल है 18,000, जो नॉन कैश गुडविल है उसके लिए जेड की करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना था, तो जेड्स करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और ये हुआ 12,000। टोटल गुडविल हो गई 30,000। इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे 1/6 1/12 है। इसको जब हम डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो ये 2:1 का रेशियो बनता है, और 2:1 में 30,000 को हम डिवीज़न करेंगे एमॉन्ग बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ये आया 20,000 एंड 10,000। तो इस तरीके से इस केस में हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे जब पार्टली गुडविल का पेमेंट कैश में होगा और कुछ पार्ट गुडविल का न्यू पार्टनर नहीं लेके आता है। इन दैट कंडीशन दिस एंट्री विल बी पास्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Z into firm for 1/5 share. Z acquires his share from X and Y in the ratio of 2:3। अगेन यहाँ पर आपको इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 दिया गया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 30,000। फर्म की गुडविल 30,000, तो जेड को 1/5 के लिए यहाँ बुलाया गया, तो 1/5 शेयर जेड लेकर के आएगा, और ये 1/5 शेयर यहाँ पर होता है 6,000 आप कैलकुलेट करेंगे तो। नेक्स्ट आएगा जेड ब्रिंग्स इन रुपीज़ 1 लाख थ्रू चेक एज ही शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल के लिए तो उसने 1 लाख रुपीज़ चेक से पेमेंट किया, बट इज़ अनेबल टू ब्रिंग इन द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन गुडविल के लिए यहाँ पर कुछ नहीं लाया। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि आउट ऑफ 30,000 उसने 18,000 कैश में पेमेंट किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लेके आ रहा है, मतलब टोटल नॉन कैश गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ करना है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इफ़ कैपिटल आर फिक्स्ड। अब यहाँ ध्यान रखना है कैपिटल फिक्स्ड होगी तो हम जो भी एंट्री पास करेंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास होगी। यहाँ पर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, यहाँ जो केस दिया गया व्हेन गुडविल इज़ नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, और दूसरे केस में क्या कहा गया कि एग्जिस्टिंग गुडविल जो बुक्स में अपीयर कर रही है 15,000, तो इसको हम राइट ऑफ करेंगे सेकेंड केस में। पहले हम समझते हैं यहाँ पे पहला केस। पहले केस में हमें सबसे पहले यहाँ पर 30,000 की जो टोटल गुडविल है इसमें 1/5 करना है जेड का शेयर जो कि 6,000 आता है। इसका पेमेंट वो नहीं किया। कैपिटल का पेमेंट उसने चेक से किया, तो इसकी एंट्री पहले करेंगे। तो लेट अस सी द एंट्री। पहले कैपिटल लेके आया, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक से लेके आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़, जेट्स ब्रॉट इन बाय चेक हिज कैपिटल, ये लेके आया। इसके बाद उसकी करंट अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे गुडविल के अमाउंट से। गुडविल के लिए आपको बताया
5 कर देंगे तो ये 6000 आ जाएगा। और एक 6000 के लिए नॉन कैश गुडविल है तो यहाँ पर AS26 अप्लाई होगा, जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा क्योंकि कैश में पेमेंट नहीं कर रहा है। तो पूरा का पूरा 6000 का एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगा। तो जेट्स करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 6000 से और इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा 2x टू वाइज करंट अकाउंट। और ये डिवीज़न करेंगे हम 2:3 की रेशियो में, जो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो इस तरीके से 2400x को मिलेगा और 3600y को मिलेगा। तो ये डिवीज़न हम करेंगे जब कंप्लीट गुडविल का वैल्यू नया पार्टनर नहीं लेके आता है। नेक्स्ट केस 2 में आते हैं। केस 2 में आप यहाँ ध्यान दें, एग्जिस्टिंग गुडविल है 15,000, तो इसको पहले राइट ऑफ करेंगे। और ये राइट ऑफ जो किया जाएगा ये ओल्ड रेशियो में। इसके लिए रूल हमने शुरू में भी बताया था कि ये पार्टनरशिप में जब भी अपीयरिंग गुडविल होगी एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो ये जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे उनके बीच में इसको राइट ऑफ किया जाता है ओल्ड रेशियो में। लेट अस सी द एंट्रीज। फर्स्ट एक्स करेंट अकाउंट डेबिट, वाइज करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये गुडविल को राइट ऑफ किया। ओल्ड रेशियो यहाँ पे 3:2 है। 3:2 में यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे 9000, 6000, 15,000 की गुडविल राइट ऑफ हो गई। अब इसके बाद जो नए पार्टनर की गुडविल है उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे। अगेन 1/5 6000 आया। और जो कैपिटल कैश में लेके आया चेक के थ्रू उसका एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल, लास्ट एंट्री की तरह ही होगा। 1 लाख का कैपिटल लेके आया। इसके बाद जेट्स करंट अकाउंट डेबिट 6000 से इसका डिवीज़न सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/5 3/5 करेंगे, जो कि 2:3 यहाँ दिया गया है इस रेशियो में। यहाँ पर 2x करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट 2400 एंड 3600। तो इस तरीके से हम यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल से रिलेटेड एंट्री करेंगे जब गुडविल का पेमेंट पार्टनर अपने हिस्से का नया जो न्यू पार्टनर है वो कैश में नहीं लेके आता है। आई होप आपको ये सभी एंट्रीज, सभी केसेस गुडविल ट्रीटमेंट के जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था पार्ट 1 में और पार्ट 2 का, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।